all, today we will be discussing the part 2 of RBI circular for the month of April. Before we start our session, you should know that the RBI circular is the most important and the key factor in your exam, specifically if you are attending Scale 2, 3 exams and CBO exams. Okay, now we will start our session. The part 1 has already been shared with you people, and the very first circular goes for the prudential norms on capital adequacy of primary urban cooperative banks. Means prudential norms means what are the capital adequacy norms? Okay, capital requirement for the banks. Especially this circular is for urban cooperative banks. And in terms of the provisions contained in section 11 of the BR Act for the SCS, no cooperative bank shall commence or carry banking business unless the aggregate value of its paid up capital and reserve. If you have this PDF, then open the PDF and go through PDF through the video. Okay, is not less than 1 lakh rupees. Means कोई भी कोऑपरेटिव बैंक तब तक अपना बिजनेस कमेंट्स नहीं कर सकता जब तक उसका पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल स्पेशली ये इक्विटी होती है, ऑनर्स इक्विटी, जो मतलब बैंक खोलने वाला बंदा अगर पैसा लगा रहा है तो 1 लाख रुपीज उसका होना चाहिए. नोट दैट आरबीआई में चेंज द नॉर्म्स. ओके, एंड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स. Urban cooperative banks should have minimum net worth. If it is a tier 1 and in a single district, it is a 2 crore. For other urban cooperative banks, minimum net worth is of 5 crores. Okay. एक क्वेश्चन बनता है, what is the required or prescribed net worth criteria for tier 1 UCBs operating in more than one district? देखो, मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट बोला है तो यहाँ पर आ जाएगा, इफ इट इज ओनली वन इन वन डिस्ट्रिक्ट देन 2 crores. Okay, this is important, you should go through it. Urban cooperative banks which currently do not meet the minimum net worth criteria as above. ऐसे भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो पहले से चल रहे हैं लेकिन अभी उनके पास ये नेटवर्थ क्राइटेरिया को मीट करने के कोई चांसेस नहीं है. Okay, then they have given some timeline. Means the urban cooperative banks achieve at least 50% of the applicable minimum net worth. Means अगर 2 crore उसके net worth में आता है तो 1 crore, अगर 5 crore net worth क्राइटेरिया में आता है तो 2.5 crore. उसका 50% 31 मार्च 2028 तक उसे अचीव कर देना है. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, पहले कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आरबीआई के अंडर यूसीबीज नहीं थे. आप देख रहे होंगे ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स का, अर्बन की बात छोड़ दीजिए, ज्यादातर मोस्ट ऑफ सभी कोऑपरेटिव बैंक्स आप देखोगे जिनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, द यूसीबीज गेटिंग द लाइसेंस कैंसिल आर मोस्ट आर द cooperative banks because they were not regulated and they are going in the liquidity crunch. Okay, that's why they have been also came under the purview of capital adequacy norms. And a minimum CRAR. What is CRAR? CRAR means capital to risk weighted asset ratio. Capital to risk weighted asset ratio means 9% on ongoing basis. Ongoing का basis का मतलब है हमेशा, always. मतलब ऐसा नहीं कि 9% बनाना है तो एक महीने में कभी 9 से नीचे चला गया, कभी 9 से ऊपर हो गया. नो,
It is either should be 9 or more than 9. It should not be below 9. Okay. Next, tier 2 to 4 urban cooperative banks CRAR 12% होगा on ongoing basis. ठीक है. टीयर 1 कैपिटल के टीयर 1 यूसीबीज के लिए 9%, tier 2 to 4 12%. Ongoing basis means always at any point of time it should not go below 12. UCPs in tier 2 to 4 which do not currently meet the revised CRAR of 12% shall achieve the same in a phased manner. Okay, means ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो अभी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स नहीं अचीव कर पाए हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, फेज्ड मैनर में अचीव करेंगे. 10% इनको अचीव करना है 2024 तक, 11% करना है 25 तक एंड 12% इज 20 मीन्स 1 year 25 and 26. 11, okay, 11%, 10%, 11% एंड 12%. ओके, ऐसे भी याद कर सकते हो आप. 10, 11, 12. ओके, 24, 25, 26 ये इनका अचीव करने का क्राइटेरिया. मास्टर सर्कुलर ऑन प्रोविजनिंग नॉर्म्स. देखो, प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऐसा नहीं है कि यूसीबीज के लिए बहुत अलग है. देर आर सेम प्रोविजनिंग नॉर्म्स एंड आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स पता होने चाहिए. दिस इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूसीबीज. यूसीबीज नहीं, ऑल मीन्स जनरल प्रोविजनिंग नॉर्म्स. जनरल प्रोविजनिंग नॉर्म्स, you should know it. It has been decided to harmonize the provisioning norms for the standard asset applicable to all categories of UCPs. Means standard assets के लिए भी provisioning करनी पड़ती है. तो standard asset के लिए जो provisioning है वो UCBs में किस तरह की है, ठीक है. Accordingly, standard asset provisioning is applicable to all UCBs means tier 1 to tier 4. अब आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 यूसीबीज क्या हैं? 1, 2, 3, 4. दिस हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द ग्रुप. द पीडीएफ हैज ऑलरेडी बीन ऑन, even specifically on UCBs has been shared, so you should go through it. I am not going to discuss here tier 1, 2, 3, 4 what are these. Direct advances to agriculture and SME sectors which are standard as सेलेटेड 0.25%. एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर को जो आप एडवांसेस दोगे वो 0.25. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एडवांसेस? मीन्स द बैंक इज डायरेक्टली लेंडेड टू द यूनिट्स नॉट थ्रू एनी इंटरमीडिएटरी लाइक एनबीएफसीज. ओके, बैंक एनबीएफसीज के थ्रू भी अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करता है, बट दैट इज एन इनडायरेक्ट एडवांस, नॉट द डायरेक्ट एडवांस. नेक्स्ट, एडवांसेस टू कमर्शियल रियल इस्टेट. कमर्शियल रियल इस्टेट में दो चीजें आती हैं, एक तो हाउसिंग के लिए होता है, एक अदर्स प्रोजेक्ट के लिए होता है. तो इफ इट इज रेजिडेंशियल हाउसिंग then it is 0.75% and if it is one other then it is 1%. Means if you have extended 100 rupees loan to any real estate, commercial real estate, if it is uh, for commercial purpose then provisioning on standard asset will be rupees 1. If it is on residential purpose it will be 0.75. okay, for other advances bank should देखो, अब इसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ आपको. क्लासिफिकेशन जो स्टैंड असेट का, स्टैंडर्ड असेट का जो भी प्रोविजनिंग नाम्स है उसमें ये कैटेगरी है. एक कैटेगरी है 0.25% की, एक कैटेगरी है 0.40% की, अदर है 1 and 0.75. ये एक ही ग्रुप में आता है.
कमर्शियल रियल इस्टेट, इसको अलग से याद कर लो। अगर ये एग्रीकल्चर या एमएसएमई के लिए है तो डायरेक्ट एडवांस है तो 0.25%। एनी अदर सेक्टर है तो 0.40%। अब आते हैं हाउसिंग में, अगर कमर्शियल रियल इस्टेट रेजिडेंशियल के लिए है तो 0.75% और अदर कमर्शियल के लिए है तो 1%। आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने 100 रुपीज का लोन दिया और अगर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया है या एमएसएमई को दिया है, 25 पैसे की प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अदर सेक्टर में दिया है तो 40 पैसे की करनी पड़ेगी। रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए दिया है तो 75 पैसे की करनी पड़ेगी। एंड इफ इट इज दैट 1 रुपीज की करनी पड़ेगी इफ इट इज कमर्शियल। दैट इज द ओनली थिंग। In erstwhile Tier 1 UCBs which are currently maintaining standard asset provision 20.25% on other loans and advances not included above as specified. These are permitted to achieve provisioning requirement of point। ठीक है, ओके। ऐसे सभी कोऑपरेटिव बैंक्स जिन जो पहले एसेट पे 0.25% मेंटेन करते थे, लेकिन अभी ड्यू टू द सच रेगुलेटरी गाइडेंस दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन 0.40%, देन दे हैव गिवन टाइमलाइन एज 31 मार्च 2025 तक इनको 0.25% वाले प्रोविजनिंग नॉर्म्स वाले जो भी 0.4 के 0 के लिए एलिजिबल हैं उनको उनकी प्रोविजनिंग कर लेनी है। ओके। जनरल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, इसका रिव्यू है। जनरल क्रेडिट कार्ड ये बैंक एग्जाम्स में ज्यादा आता है, प्रमोशन एग्जाम्स में। आप अभी एसबीआई सीबीओ में आया नहीं, बट क्योंकि अगर इसका रिव्यू हुआ है तो पूछ सकता है। ओके। द इंस्ट्रक्शंस किसको लगेंगे? अप्लाई टू ऑल बैंक्स विच आर एलिजिबल टू इशू क्रेडिट कार्ड्स। ओके, तो ऐसे कौन से बैंक हैं जो एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। मीन्स जनरल क्रेडिट कार्ड कौन इशू कर सकता है? वो इशू कर सकते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इंडिविजुअल एंटिटीज सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज फॉर नॉन फॉर्म एंटरप्रेन्योर्स एक्टिविटीज विच आर एलिजिबल फॉर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस में बी इशूड जनरल क्रेडिट कार्ड्स। ये आपको किस तरह से पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर में है, वही चीज मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है। आपको एमसीक्यूज इस पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। एलिजिबिलिटी पढ़ना है कि किस तरह से किसको इशू किया जा सकता है नॉन फार्म इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज के लिए, और क्वांटम ऑफ लिमिट तो कुछ नहीं है उससे। ठीक है, ये पढ़ लेना है। बाकी नहीं पढ़ना है। जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम आप, इफ यू आर वेरी विलिंग टू स्टडी देन स्टडी, अदर नहीं। एनी अदर क्रेडिट कार्ड अगर इशू किया गया है, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, वीवर्स कार्ड in existence and catering to non-farm entrepreneurial credit needs of individuals should be included for the reporting of credit extended through general credit cards under the financial inclusion plans। okay? मतलब अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है जो कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए है तो उसको जनरल क्रेडिट कार्ड में आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर कंजम्पशन के लिए है तो उसको आपको जनरल क्रेडिट कार्ड में क्लासिफाई नहीं करना है। ओके, दीज आर इम्पोर्टेंट, आपको पढ़ लेना। इस ग्रुप में से लेकर के आप इसे पढ़ लेना, मैं एमसीक्यूज इस पे करा दूंगा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होता है, बिलिंग साइकिल क्या होती है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, ये ठीक है। इस तरह के ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। चार्ज कार्ड क्या होता है, क्रो ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, ठीक है। आरआरबीज नहीं इशू कर सकते क्रो ब्रांडेड कार्ड, यूसीबीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। ये डिफिनीशन सब आपको पढ़ लेना है। कारपोरेट क्रेडिट कार्ड क्या है? तो जो भी कारपोरेट को नहीं इशू ये मत सोचना कि ये कारपोरेट को इशू किया, नो। कारपोरेट इम्प्लॉइज को जो इशू किया जाता है, स्पेसिफिक इम्प्लॉइज ऑफ अ कारपोरेट एम्प्लॉयर, ठीक है, दैट इज कारपोरेट क्रेडिट कार्ड। ओके, ये आपको पढ़ लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है।
अभी एंड minimum amount due and prepaid card, this is also important. Next, scheduled commercial banks other than original RRBs with net worth. Okay, ऐसे बैंक्स जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ एंड एबो हो आर परमिटेड टू अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस आइदर इंडिपेंडेंटली और टाई अप अरेंजमेंट विद अदर बैंक्स NBFCs with the approval of their boards. Okay, ठीक है. शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग, ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रूरल बैंक्स को हटा करके अगर कोई क्रेडिट कार्ड के लिए सेपरेट सब्सिडरी जैसे SBI कार्ड्स है, वॉब कार्ड्स है, PNB कार्ड्स है, तो उनको RBI से परमिशन लेना पड़ेगा. लेकिन अगर वो एज ए बैंक इशू कर रहे हैं तो उनको कोई ऐसा परमिशन का सच जरूरत नहीं है. जस्ट दे कैन इन्फॉर्म दैट दे आर इन द बिजनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. RRBs आर परमिटेड, RRBs इशू कर सकते हैं लेकिन वो अपने कोलेबोरेशन विद देयर स्पॉन्सर बैंक और अदर बैंक्स. ओके, मींस RRB अदर बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप में भी इशू कर सकते हैं. लेकिन सभी UCBs नहीं इशू कर सकते. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से इशू कर सकते हैं? फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड. देखिए ये इंपॉर्टेंट है टर्म. ओके, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड कोऑपरेटिव बैंक्स किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक्स? तो इसके लिए ऑलरेडी UCBs का जो PDF है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको पढ़ना ही है. ओके, लेकिन मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ इनके ऊपर भी लगा हुआ है विथ CBS इनेबल्ड. ओके, मींस ऐसा नहीं है कि RRB और UCBs नहीं इशू कर सकते, बट उनके साथ बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई है. ठीक है, केवल 100 करोड़ का नेटवर्थ ही जरूरी नहीं है. ओके, नोट दैट, हाँ दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है. जो कार्ड इशू करते हैं उन्हें कार्ड एक्टिवेट करने के लिए एक OTP चाहिए. अगर कार्ड 30 डेज में एक्टिवेट नहीं किया गया, ठीक है, एंड नो कंसेंट इज रिसीव्ड फॉर एक्टिवेटिंग द कार्ड issuer said close the credit card without any cost to the customer. अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और 30 डेज तक आप उसको यूज नहीं करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली यूज करने का तो छोड़ दीजिए, इफ यू अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं तो कार्ड इश्यूअर मींस बैंक उसको क्लोज कर देगा विदाउट एनी कॉस्ट टू कस्टमर. मींस इसके लिए वो कस्टमर से कोई चार्ज भी नहीं लेगा. क्लोजर ऑफ क्रेडिट कार्ड ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. बिलिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, उसमें जान लीजिए कि अगर 5,000 से ज्यादा एक बार में आपके अकाउंट से वो डेबिट कर रहा है तो बैंक को सेपरेट कंसेंट जरूरी है. ओके, या एडजस्ट द क्रेडिट अमाउंट बियॉन्ड ए कट ऑफ 1% ऑफ द क्रेडिट लिमिट और 5,000 विच एवर इज लोअर. ओके, या तो जितना क्रेडिट आपको दिया है उसका 1% कार्ड की लिमिट जो है, या 5,000. ठीक है, एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए इसके लिए, एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कार्ड होल्डर. डेबिट कार्ड issuance guidelines, these are not very much important, you should leave it. बट डेबिट कार्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये अंत्योदय हो गया है, ये थोड़ा गलत हो गया. अंत्योदय, अंत्योदय योजना NRLM, डे NRLM. तो DNRM किसको रिस्ट्रक्चर करके बनाया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिस्ट्रक्चर करके 1 अप्रैल 2013 से ये 2013 से अप्लाई किया गया था. DNRM प्रमोट्स एफिनिटी बेस्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स.
स्पेसिफिकली ये एसएचजीज के लिए, एसएचजीज के लिए अलग से वीडियो है, आप देख सकते हो प्रियोरिटी सेक्टर में। प्रियोरिटी सेक्टर का जो वीडियो की लिस्ट है उसमें आप एसएचजीज में देख सकते हो, आपको पूरा एसएचजी के डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके। नोट दैट नो कैपिटल सब्सिडी इज गिवन अंडर डेयर आर्म। ये आपको पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, ये आपको पढ़ना है, एसएचजी शुड बी एक्टिव इन एग्जिस्टेंस फॉर 6 मंथ एज पर दियर बुक ऑफ अकाउंट्स। मतलब एसएचजी जब फॉर्मेट फॉर्म होता है तो उनके पास एक बुक ऑफ अकाउंट्स रहता है कि किसने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं या कौन सी लेंडिंग किसने की है किस ग्रुप में ही। तो वो बुक जो है 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि वो 6 महीने से पुरानी आसानी से कोई भी बना सकता है। तो दैट इज द वन ऑफ द थिंग्स। एसएचजी शुड बी प्रैक्टिसाइजिंग पंचसूत्रा रेगुलर मीटिंग सेविंग इंटर लेंडिंग टाइमली रीपेमेंट एंड अप टू डेट बुक ऑफ अकाउंट्स। ये 5 सूत्र हैं, ये नाबार्ड की तरफ से दिए गए हैं। एसएचजी शुड क्वालिफाई एज पर ग्रेडिंग। मिनिमम ग्रेडिंग उनकी 60 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ओके। जो एसएचजी के फेडरेशंस हैं, ठीक है, वहां से, जैसे आईकेपी है, उधर बहुत सारे अदर एजेंसी स्पॉन्सरिंग एजेंसीज रहती हैं, तो वो भी इसको ग्रेडिंग कर सकती हैं। द एग्जिस्टिंग डिफंक्ट एसएचजीज मतलब ऐसे एसएचजी जो अभी चल नहीं रहे, बंद हो गए हैं, मतलब पंचसूत्रा फॉलो नहीं हो रहा है, उनको रिवाइव करने के लिए भी आप एसएचजी का डे एनआरएलएम के थ्रू लोन दे सकते हो। लोन अमाउंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, ठीक है, नेक्स्ट डोज, फोर्थ, फिफ्थ भी हो सकता है क्योंकि मैच्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको देखना है। सेकंड आपको क्या पढ़ना है कि अमाउंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कोलेटरल एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी कोलेटरल 20 लाख तक तो कोई कोलेटरल नहीं लेना है अगर आपको। अगर आप गारंटी ले रहे हैं तो CGFMU गारंटी, ठीक है। अच्छा, लोन कैसा दिया जा सकता है इनको? या तो कैश क्रेडिट लिमिट दे सकते हो आप, इनकेस आप कैश क्रेडिट लिमिट दे सकते हो। बैंक्स आर एडवाइज टू सैंक्शन मिनिमम लोन ऑफ 6 lakhs टू ईच एलिजिबल एसएचजी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ओके, सीसीएल के केस में डीपी 6 times 8 times। ओके, थर्ड ईयर उनके एमसीपी के, फोर्थ ईयर ऑन अवार्ड एबो 6 lakhs बेड ऑन एमसीपी, ठीक है। इस तरह से आपको लेना देना। अगर टर्म लोन देते हैं तो 6 times देंगे, फिर 8 times देंगे, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट ये है कि 1.53 इस तरह का है कि अगर आप 6 times दे रहे हैं, मान लो उनका कॉर्पस है 50,000, मान लो 5,000 है, उनका कॉर्पस 5,000 है और उसका 6 times हो गया 30,000। मिनिमम देना है 1.5, तो आप इसको 30 न दे करके 1.5 दे देंगे। ओके। हर डोज मिनिमम 6 लाख, फोर्थ डोज ऑनवर्ड्स अबव 6 lakhs। Purpose of loan and repayment: loans should be would be distributed among members based on MCP plans. Okay, the loans may be used by सोशल नीड्स, मतलब उसका अपना खुद का खर्च हो, कोई शादी में, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, या कहीं से उसने हाई कास्ट डेट ले लिया है बाहर से, उसको देना हो, घर बनाना है, इसके लिए भी देना है। ओके। बट बट 50% लोन्स ऑफ एबो 1 लाख, अगर 1 लाख के ऊपर आप लोन दे रहे हो, मान लो आपने 3 lakhs दिया, तो 50% मतलब 1.5 लाख तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में लगना चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम करें जिससे इनकम, बाकी 1.5 लाख आपको सोशल में लग सकता है, ठीक है। अगर 4 लाख से ज्यादा दिए हैं तो 75%, एंड अगर 4 लाख से ज्यादा दिए हैं तो, हाँ, 85% ऑफ एबो 6 लाख। अगर 6 लाख से ज्यादा दिए हैं तो 85% आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी मीन्स
इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिससे आप कुछ पैसा रिपेमेंट के लिए या किसी चीज के लिए जनरेट कर सके। ओके, फर्स्ट डोज 24 to 36 इंस्टॉलमेंट, second dose 36 to 48 monthly installment, and third dose may be repeated in 48 to 60 based on the cash flow. Fourth periods to onward it may go around 7 years means 84 months. Collateral and margin, this is important. ये SBI CBO में भी पूछा गया था इस बार, ठीक है, तो मैंने बताया। SHG के 10 लाख के लिए तो कोलेटरल और मार्जिन का जरूरत नहीं है। 10 लाख तक, 20 लाख तक आपको क्या करना है, आप गारंटी लोगे CGFMU को और कोलेटरल नहीं लेना है, बट मार्जिन ले सकते हो आप, यूनिफॉर्म मार्जिन। ओके, बट मार्जिन के लिए क्राइटेरिया है कि मार्जिन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द लोन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। ओके, मीन्स मार्जिन आपको 10% एक्सीडिंग 10 लाख मतलब 10 इंटू 10% मीन्स 10 का 10%, ठीक है, 1 मतलब 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन आप नहीं ले सकते 20 लाख के लोन में, ठीक है। मीन्स 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, इसका मतलब है आप जीरो भी ले सकते हो, मतलब मार्जिन। दैट इज नॉट any guideline that you have to take the margin, but you may take the margin to ensure your safety of funds. Okay, बट अगर एग्जाम में आ गया कि मार्जिन जरूरी है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाना चाहिए, बिकॉज इट इज some way it will be some ambiguous in nature and most students may be get confused. So margin is not necessary, but margin can be taken but not exceeding 10% of the loan amount exceeding 10 lakh. Okay, collateral, no collateral. Okay, for loans up to 3 lakhs under the scheme interest subvention. Okay, स्पेसिफिकली ये KCC की ही तरह है, 3 लाख तक का लोन है तो कंसेशनल 7% रेट पे मिलेगा। ओके, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें 4.5% पर एनम है, बट अदर में नहीं है, KCC में इतना नहीं है, KCC में 4% ही है। ठीक, ये आपको पढ़ लेना है, इंटरेस्ट सबवेंशन ये इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंसेस टू IFSCs अंडर LRS नॉट इम्पॉर्टेंट, बट LRS आप पढ़ लेना, LRS इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये फाइनल हो गया इसका वो सर्कुलर आपका पार्ट 2, और इंश्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज नाउ you can like and subscribe. This is the channel where you can join for banking and awareness PDF. This is our YouTube channel you are watching and you can subscribe it. Okay, but MCQ will be put in session, because what I have written in the PDF, the same thing I will be chanting here won't make you any suitable uh, thing for you. Okay, so we should leave our session now, and hope you enjoyed this session.